Question number 11. Okay. हाँ. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಟವರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री. अंदर यहाँ पे अब एक बैंक है, मतलब एक रोड पॉइंट है. ये पॉइंट से ये जो टॉप ऑफ द टावर है ना, उसको एक एंगल है. कितना एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री है. ओके. नेक्स्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर away from this point on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से और अगर 20 मीटर दूर जाके पीछे जाके और एक पॉइंट है, वो पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करा समझो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर को, तो यहाँ पे जो एंगल आता है ना, दैट इज एंगल इज 30 डिग्री. बोल रहा हूँ, दैट एंगल इज 30 डिग्री. समझे? वो जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये टावर की हाइट मालूम करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, दिस वी हैव टू फाइंड. ये ऑलरेडी आपकी बुक में भी दिया है सर. ए बी सी एंड डी. ओके, इट इज अवर फिगर. नाउ टेक गिवन. व्हाट इज अ गिवन हियर? बोलो गिवन क्या है? हाँ, the angle of elevation from the point on the ground is theta is equals to 60 degree. Okay, theta is equals to 60 degree. The angle of elevation from this point away from the ground, 20 meter away from the ground, 20 meter away from the ground, that is theta is equals to 30 degree. Okay, this is our given. ये given है आपका. Next we have to find the height of the tower and the width of the canal. Height of the tower and the width of the canal. Canal की width और tower की height मालूम करना है. Okay. Yes. Let's see. Let triangle ABC in this triangle. ABC in this triangle. Tan theta we can write opposite by adjacent. Tan 60 degree is equals to AB divided by BC. Okay, then tan 60 is root 3 is equals to AB by BC. Then it means AB is equals to root 3 into BC. Okay, AB is equals to root 3 into BC. Next, let consider triangle ABD. ABD. Okay, this triangle, in that tan theta is equals to opposite by adjacent. Tan theta is 30 degree is equals to opposite is AB, adjacent is BD. Okay, adjacent is BD. Tan 30 I can write here. Tan 30 is 1 by root 3 is equals to AB divided by BD, and AB can be written as BD divided by root 3. BD divided by root 3. Okay. Now see this and this equation. This equation 1, equation 2. We can write from equation 1 and 2. LHS are equal. ABB is there. Then we can equate RHS also. That is 3 root 3 BC is equals to BD divided by root 3. Next, this root 3 goes to this side. Root 3 into root 3 BC is equals to BD can be written as B to D can be written as BC plus CD. BC plus CD or DC. Okay, BC plus
CD. Next, this root 3 3BC is equals to BC plus DC. Now it is DC is equals to 3BC minus BC. Okay, this BC goes to this side, and DC is equals to, it become DC is equals to 2BC. DC is equals to 2BC. It means DC is equals to 2BC, and मतलब क्या होता है देखो, then BC can be written as DC divided by 2 to this side, and we know that BC is equals to DC value हमको मालूम है, that is 20 meter, already given. Okay, 20 meter. Now we can put here 20 divided by 2, and we got BC is equals to 10 meter. BC is equals to 10 meter. Okay, this is the width of the canal. ये क्या है आपका, width of the canal है ना, चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चौड़ाई है ना वो क्या है, width है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है that is 10 मीटर. अभी हाइट मालूम करना है, we have to find the height. अब देखो आपको ये मालूम है, ये 10 मीटर है. हाँ, अब ये ट्राइंगल tan थीटा लेके यहाँ पे एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, एडजेसेंट आप 10 डाल दे, अपोजिट जो है आपको मालूम हो जाता, दैट इज आंसर 10√3 आ सकता. ओके, 10√3. और यू कैन डायरेक्टली पुट द BC वैल्यू इन, कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करो BC वैल्यू इन इक्वेशन 1, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, AB इज इक्वल्स टू √3 BC. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. इसका मतलब देखो यहाँ पे एक आपकी बिल्डिंग है, दैट द बिल्डिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर. कितना है, 7 मीटर आपकी बिल्डिंग की हाइट है. ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे आपका एक केबल टावर है. कौन सा टावर है, केबल का टावर है. यहां से यहां तक जो एंगल है ना, दिट इज कॉल्ड एंगल ऑफ हॉरिजेंटल. ये जो लाइन है ना, ये लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं. यहां से जो आपका एक एंगल आता है, दिस एंगल इज एलिवेटेड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है. दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज अबाउट 60 डिग्री. कितना है, 60 डिग्री. नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. मतलब यहाँ से और एक एंगल है, वो क्या है, ऐसा नीचे जा रहा, यहाँ पे फुट पे आया, तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे, दैट एंगल इज अबाउट 45 डिग्री. यहाँ पे कितना एंगल है, दैट इज नॉन एज 45 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये आपको मालूम करना है, टावर की हाइट. ओके, लेट सपोज इट इज A, B, C, D एंड E. ABCD नाम डालो, ठीक है. चलो बोलो अब क्या करना. AB that is a building. CEC is a height of the tower. Okay, and this is a horizontal plane. It is the angle of depression from the top of the building to the foot of the tower, and the angle of elevation from the top of the building to the top of the tower. ये जो बिल्डिंग की हाइट पे से ऐसा ऊपर देख रहे, समझो बिल्डिंग के ऊपर ठहरा ऐसा देख रहे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, दिस इज 60 डिग्री. एंड वहां पे बिल्डिंग के ऊपर हो और जो टावर है उसका फुट नीचे है, मैं टावर के फुट को नीचे देख रहा हूँ, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, वो जो मेरा एकदम 90 डिग्री से निकलता ना, दैट इज एंगल ऑफ हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल प्लेन वी कैन से. ओके, चलो अब इतना लिखे. गिवन लिखो. व्हाट इज अ गिवन, व्हाट इज अ गिवन, बोलो क्या क्या है गिवन. हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको कितना है, 7 मीटर. लिखो हाइट ऑफ बिल्डिंग, दैट इज AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर. नेक्स्ट, नेक्स्ट और कुछ दिया क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इज 60 डिग्री. द एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। ओके, इतना मालूम आपको। इन एडीसी triangle tan theta is equals to opposite by adjacent and tan 45 is DC divided by AD. Is the next is 1 is equals to 7 divided by AD and AD goes to this side because AD is equals to 7 meter. Okay, कौन सा लेते हैं नेक्स्ट? इन ट्राइंगल ए डी ई। ओके, ऊपर वाला ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बोलो? अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, tan थीटा वैल्यू कितना है वहां पे? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट। व्हाट इज अपोजिट? ईडी। एडजेसेंट इज एडी। tan 60 is √3, ED is we don't know, divided by AD is 7, तो ED is equals to कितना होगा? 7√3 मीटर। दिस इज अ ओके, ED भी कितना है? 7√3 मीटर। आपको मालूम क्या करना है? E यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सॉरी हाइट ऑफ टावर, दैट इज इक्वल्स टू E C is equals to ED plus CD वी कैन राइट। अब देखो यहां से यहां तक है पूरा C तक, अब मैं इसको यहां से यहां तक को यहां से यहां तक और प्लस यहां से यहां तक लिखो, बात एक ही है। ओके, EC बराबर ED प्लस DC लिखो, बात एक ही है। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी ED कितना है आपको मालूम है? दैट इज 7√3 मीटर। 7√3 प्लस DC कितना है? DC कितना है? नीचे देखो, D से C 7। हाँ, देन 7 कॉमन लियो, बचा क्या? √3 प्लस 1 दैट इज मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, लिखो हाइट ऑफ द सॉरी टावर, बिल्डिंग बोल रहा हूँ, दैट इज टावर इज 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ओके, लिखो। कौन सा प्लस होता? रूट है वो। ओके, क्या कौन सा? ओके, ठीक है। Question number 13. Okay, it is also important. As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. इसका मतलब यहाँ पे देखो आपका एक टावर है, दिस इज अवर टावर, एक लाइट हाउस है, टावर नहीं है ये, लाइट हाउस है। यहाँ पे आपका समुंदर है। ओके, लाइट हाउस कहाँ रहता है? पूरा समुंदर के किनारे है। ओके, समुंदर के अंदर यहाँ पे आपकी एक शिप है, दैट इज यहाँ पे एक आपकी शिप है। वो जो शिप है ना दैट इज 30 डिग्री। यहां से जो है ना उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक शिप है, दैट इज इसका जो एंगल है दैट इज आल्सो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बाहर अंदर वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे ये जो अंदर वाला एंगल है यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड, दैट इज 45 डिग्री एंड ये जो बाहर वाला एंगल है ना दैट इज 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ओके, अब इसका अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल देखो, ये 30 डिग्री का अपोजिट एंगल ये होता, दैट इज 30 डिग्री। ये 45 डिग्री का अपोजिट एंगल ये होता, दैट इज 45 डिग्री। समझे क्या? अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स, यू टेक इट इज ए बी सी डी। कुछ दिक्कत है? कुछ तो डाउट है? नो डाउट, दैट इज ए बी सी डी है। यहाँ पे जो एंगल 45 30 डिग्री और कुछ दिया गया, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship। अब ये मालूम करना है आपको डिस्टेंस। ओके, ये कितना मीटर है आपका? 75 मीटर हाई है। कितना है? 70 मीटर हाई लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट भी ऐसा है। ओके, चलो गिवन लिख लो। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम है ना, दैट इज यहां से यहां तक है ना, ये लाइन पे है, दिस एडी के लाइन पे है ना, ये 30 डिग्री, दिस एडी के लाइन पे बोले तो ये जो एंगल है ना डी से स्टार्ट होना, इसका जस्ट अपोजिट डी से स्टार्ट होना है। अब देखो यहाँ पे सी पे नहीं है, ये अगर यहाँ पे रहता था फिर यहाँ पे होता था। अब जैसे यहाँ 45 देखो ए सी पे लाइन पे है, दैट इज उसका अपोजिट एंगल ए सी पे आया। समझे? अब ये जो ए डी पे है इसलिए ये एंगल भी क्या हुआ? ए डी पे है। समझे क्या? दैट इज अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल। ओके, इट इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ गिवन, व्हाट इज द गिवन? गिवन क्या है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस। क्या है? हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है? कितना है हाइट ऑफ लाइट हाउस? इट इज ए बी इज इक्वल्स टू 75 मीटर। 75 मीटर। ओके, हाँ, सीरीज द एंगल ऑफ एलिवेशन,
एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट डी इज 30 डिग्री ओके ये क्लियर है लिखो इतना सी दिस टेक ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी वेयर इज एबीसी ट्राइंगल दिस साइड tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या था अपोजिट डिवाइडेड बाय और यू कैन टेक डायरेक्टली 45 is equals to AB divided by BC. Tan 45 is 1. AB is 75 is equals to BC. Then BC is equals to 75 meter. BC कितना आया 75 meter आया. Okay. Next we have to find this DC. Okay. You take in triangle ABD, that big triangle. Okay. Tan 30 degree is equals to opposite is AB, adjacent is BD or DB. Okay, tan 30 is 1 divided by root 3. AB value is 75 divided by DB. Next I will write here this BD is equals to 75 root 3. Okay, and BD can be written as DC plus BC is equals to 75 root 3 and DC plus BC value we know that there is 75 is equals to 75 root 3 and DC is equals to 75 root 3 minus 75. DC is equals to 75 is common, root 3 minus 1 meter. It is the distance between the two ship. Okay, this is the distance between the two ship. Okay, right.